New Hope TV, your encounter with God. Let's quickly get into it right now. कल से जल्दी से हम वचन में जाएंगे इस You know, वक्त। the Benjamin generation और देखिए बिन्यामीन की पीढ़ी is the generation that will see the coming of the Lord. Hallelujah. तो बिन्यामीन की पीढ़ी वो पीढ़ी है जो प्रभु के दूसरे आगमन को देखेगी। Go with me to the book of Genesis 45 and verse 22. और चलिए निकालेंगे इस समय उत्पत्ति का 45वां अध्याय। Now here is Joseph, यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ को a typology of Christ in the Old Testament. पुराने नियम में मसीह के ही प्रतीक के रूप में पाया जाता। Let me just explain, what do you mean by a typology of Christ? Okay, the और first one, write it down. बताने दीजिए कि मसीह का मतलब क्या है इसका। I told you आपको बताया हमने that in the Old Testament, पुराने नियम में the New Testament is hidden. नया नियम छिपा हुआ है, But in the New Testament, लेकिन नए नियम में the Old Testament is revealed. पुराना नियम जो है प्रकाशित किया गया है। That's why Paul would always refer to the Old Testament and bring out truths and reveal it to people. और इसी वजह से हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस हमेशा पुराने नियम की चर्चा किया करते थे और फिर उसमें से लोगों के सामने सच्चाई को पेश करते। The New Testament is the fulfillment of the shadow or the type. और हम देखते हैं नया नियम जो है यह परिपूर्णता है उस परछाई की या उस तरीके का। समझ If you रहे हैं? want to speak to a Jew about Jesus, अगर आप किसी यहूदी से यीशु के बारे में कहना चाहते हैं you have to take him from the Old Testament into the fulfillment in the New Testament. How many of you understand? तो जरूरी होगा कि आपको उन्हें पुरानी नियम से शुरू करके नए नियम की परिपूर्णता में ले जाना पड़ेगा। This is not for babies, ये बच्चों के लिए नहीं है, but I pray God will give you today solid food. लेकिन प्रार्थना करते हैं कि आज परमेश्वर आपको भारी आहार दे दे। Last time I gave you many types of Joseph, Old Testament Christ. Okay. और पिछली Now बार देखिए please बहुत don't सारी misquote me. I did not say Joseph is the Christ. He's a type. Everyone say he's a type. Hello, are you बहुत listening? सारे से मिसाल दिए Shadow. गए थे I'll कि कैसे explain. यूसुफ जो है पुराने नियम में मसीह के प्रतीक के रूप में वहां पे दिखाई देता Pratik, है। I like that. Okay, you know, in the prison, जब जेल में Joseph spoke to two people. दो लोगों से यूसुफ ने बात की है, One was saved and one died. एक तो बच गया और एक मर गया। In the New Testament, नए नियम में Jesus was crucified with two people. यीशु भी दो लोगों के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, दाएं और बाएं। Are you getting me what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? One received him, one accepted him, and the other was condemned. एक देखिए ग्रहण कर लिया, एक ने अपना लिया, दूसरे को जो है दंड मिला। During the time of Joseph, हम देखते हैं यूसुफ के समय the butler was protected and the baker was hanged. और देखिए जो पिलाने हारों का जो प्रधान था उसे तो तरक्की मिली थी, लेकिन जो पकाने हारों का प्रधान था उसको फांसी पर चढ़ाया गया, So you उसको see, मारा गया। there are many types like this. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अन्य को अलग प्रकार के तरीके हैं। With this understanding, let's go to Genesis 45 and verse 22. Right? चलिए इस समझदारी के साथ हम जाएंगे उत्पत्ति का 45वें अध्याय में। Now Joseph is meeting his brothers. और देखिए यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है How does Jesus meet his brothers? और कैसे यीशु अपने भाइयों से मिलते हैं। Watch this. गौर करें। He gave to all of them, to each man, changes of garments. और देखते हैं कि उसने हर एक को के वस्त्र के अनुसार उसके वस्त्र को बदल दिए। But to Benjamin, he gave 300 pieces of silver and 5 changes of garments. लेकिन हम देखते हैं बिन्यामीन को उसने 300 सिक्का दिया चांदी का और फिर 5 अलग अलग वस्त्र। See, for others, he gave a change of garments. हम देखते हैं दूसरों को तो उसने वस्त्र अलग रंग का वस्त्र पहना है। To Benjamin, he gave 5 changes of garments. हम देखते हैं कि वहां पर उसने 5 अलग प्रकार के वस्त्रों से दिए। What is a garment? Please write this down. लिख लीजिए। A garment is an anointing. वस्त्र जो होता है यह है अभिषेक। Sometimes, you know, in the dream, you see you receiving yourself a garment. और कभी कभी सपनों में आप देखते हैं कि आप कोई कपड़ा पा रहे हैं, वस्त्र पा रहे हैं। When we go to heaven, देखिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे we are going to be given robes. Those are called the robes of righteousness. We're going to be given a garment. और देखिए हमें वस्त्र पहनाया जाएगा, वो है धार्मिकता के वस्त्र, वो हमें कपड़े पहनाएगा। When the prodigal son came to the father, जब उड़ाऊ बेटा अपने पिता के पास आया, the old garments, the piggy garments, everyone say piggy garments. You know piggy garments, sir? The smelling of pigs. Your garments will always smell like the people you fellowship with. Come और on, देखिए somebody. आपके वस्त्र में से उसी प्रकार की गंध आती है जिस प्रकार के लोगों के साथ आप रहते हैं। When I was in the band, you know, my drummer and myself never drank, never smoked. But we used to go, we hang out with the gang. But when we used to come out, my mother used to say, "Kidhar hai? Smoke karu na ilai." I said, "No, your clothes smell like smoke." Are you getting me right now? आप समझ रहे हैं इस So your clothes will become like the people you hang around with. तो आपके कपड़े देखिए वैसे ही हो जाते हैं जिस प्रकार के लोगों के साथ आप मेलजोल करते घूमते फिरते They हैं। will smell like those people. उन लोगों के जैसे गंध उसमें से आने लगेगी। This is symbolic. I'm trying to get you into something right now. ये देखिए प्रतीक माना जाता है, आपको बताना चाहते हैं कुछ समझे आप। When the prodigal son came to the father's house, जब उड़ाऊ बेटा आया अपने पिता के घर में, the first thing that father did was saying, "Hey, say, you can't function in my house with those garments."
और पहली चीज जो पिता ने कहा ये कहते हुए कि तुम मेरे घर में उन कपड़ों को पहन के काम नहीं कर सकते, You're my son. तुम मेरे बेटे हो, But to function in my house, लेकिन मेरे घर में काम करने के you लिए need another garment. तुम्हें दूसरा कपड़ा जरूरी है। And guess what? और सोचिए जरा, They brought the best garment in the house. अपने घर का सबसे उत्तम कपड़े वे लेकर आए। Question. सवाल, Whose garment was it? किसका था वो कपड़ा? It was not the servant's garment. वो उसके दास दासियों का कपड़े नहीं It थे, was the father's वो garment. पिता का कपड़ा था। Come on, somebody, you need to receive it. किसी को Hallelujah. तो ग्रहण करने की जरूरत है। So you see, the garment will speak about the anointing, the authority that you carry. तो आप देखते हैं वस्त्र जो कपड़ा जो है वो अभिषेक और अधिकार जो आप लिए हुए उसके बारे में बताती है। Let me take it to you in the secular world right now. चलिए दुनिया के जगत में बताते When you हैं, join the army, जब आप फौज में जुड़ते you हैं are given a garment. तो आपको वहां पर उनकी वर्दी या कपड़ा दिया जाता By है, that you know which rank you carry. तो उसके जरिए आपको पता चल जाता है कि आप कौन से When you ओहदे पर join हैं। the police force, जब आप पुलिस फोर्स में you जुड़ते have a हैं garment. आपको When you वस्त्र वर्दी join दी a जाती है। specific company, you have a garment. जब किसी खास प्रकार की कंपनी में आप जुड़ते हैं तो वो भी आपको गारमेंट देते, So कपड़ा a देते हैं। garment speaks about an anointing. तो ये कपड़ा जो है वस्त्र जो है अभिषेक के बारे में बोलता है। Write this down. लिख लीजिए, Tonight you will have a dream that the new garment is coming upon your life. आज की रात आप ऐसा सपना देखने जा रहे हैं, एक नया कपड़ा आपकी जिंदगी पर आ रहा है। Some of you had a dream that your marriage garment was stolen. I cancel that dream in the name of Jesus. और आप में से कुछ लोगों ने ऐसा Yes, सपना देखा कि yes. आपके शादी का जोड़ा जो है चुरा लिया गया, उसे रद्द करते हैं यीशु के नाम में। Some of you saw yourself standing in garments that were torn and tattered. खड़े हो जाएं I सब लोग। cancel that dream of poverty over your life, and today new garment is coming over your life in the name of Jesus. गरीबी के उस स्वप्न को आप पर से रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम में। I'm not talking something, I'm prophesying right now. कुछ बेतुका नहीं बोल रहे, आप भविष्यवाणी कर रहे Some हैं। of you had a dream that your marriage garment was stolen. Somebody threw something on that. और कुछ लोगों ने ऐसा सपना Keep देखा कि standing. आपके शादी का जोड़ा जो है चुरा लिया गया या फिर कहीं पर लोगों ने फेंक दिया। Today I cancel that dream in the name of आज Jesus. वो सपनों को रद्द करते हैं यीशु के नाम में। New garments are coming over your life right now in the name of नए Jesus. कपड़े आ रहे हैं आपकी जिंदगी पर इस वक्त। Some of you standing naked. आप में से कुछ लोग खड़े नंगे एक रूम In the पे, dream. सपने में। That is that your garment was stolen. इसका मतलब ये है कि आपका कपड़ा चुरा लिया गया। Today a covering is coming upon your life in the name of आज ये Jesus. ढका आपकी जिंदगी पर आ रहा है यीशु के नाम में। You need to lift your hand and say, I receive heavenly garments. अपने हाथ में क्या है, मैं स्वर्गीय कपड़ा ग्रहण करता हूँ। Say, I receive heavenly garments. बोले मैं स्वर्गीय कपड़ा ग्रहण करता In हूँ the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Thank you, Lord. You're going to receive garments. आप ऐसे कपड़े ग्रहण करने जा रहे हैं। Garment also speaks about practical provision. और आप देखते हैं कपड़ा जो है ये भौतिक होती है उसके बारे में बताती है, Practical provision. और व्यवहारिक या भौतिक पूर्ति। Many times I will see sisters, I will see them covered in a cloth. It speaks that they are coming under a covering. Possibly it's marriage. Hello. और देखिए बहुत बात है, पासवान जी जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो एक प्रकार के वस्त्र के आदि में वो देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि किसी शादी में के संबंध में आ रहे हो। Usually it works like this. अक्सर इस तरह से काम करता है। Garments also speak of provision. वस्त्र जो है ये आपके लिए चीजों की पूर्ति के भी बारे में बताती है। Sometimes I see people with hats. And when I tell them, they don't understand. I see a hat. They say, नहीं मेरे पास टोपी नहीं है. Hey. कभी कभी पासवान जी जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो सिर पर टोपी देखते हो, जब इस बारे में उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं अरे ऐसा कुछ तो है नहीं मेरे पास। And then I tell them, जब उससे कहा जाता है sir, a new responsibility is coming on you. और जनाब देखिए एक नई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा रही है। Now I understood, David. हाँ अब मुझे समझ में आ गया। Now you go home and prophesy. You see your watchman sitting over there and you prophesy. I see a new hat. Hallelujah. He comes and says, I got a new job. Glory to be to Jesus. और जब आप घर जाएंगे आपका वॉचमैन मिलेगा तो कहना कि मैं टोपी देख रही हूँ या टोपी देख रहा हूँ, फिर वो एक नए नौकरी के साथ गवाही देने आएगा। So many of you are seeing, but you don't understand what you're तो seeing. आप में से बहुत सारे जो देखते तो है लेकिन आप समझते नहीं जो आप देख रहे हैं। If you've been reading your Bible, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, the number 5 symbolizes God's grace. हम वहां पर देखते हैं संख्या 5 जो है ये अनुग्रह का प्रतीक है। How? कैसे? Why? क्यों? Never accept anything what the preacher says just like that. और देखिए जब कोई प्रचारक कुछ भी ऐसा कहता है बस यूं ही अपना मत You लीजिएगा। see, 5 is hidden everywhere. आप देखते हैं 5 ये संख्या हर जगह छिपी हुई है। In the Old Testament, पुराने नियम में you know, your relationship with God was complete through 5 offerings. Come on. आपका संबंध परमेश्वर के साथ पूरी तरह से ये 5 प्रकार के भेंट पर निर्भर है। The first one, पहला the burnt offering. होम बलि, The second, दूसरा the sin offering. ये पाप बलि, The trespass offering. और फिर ये अधर्म का जो पाप प्रायश्चित The का बलि, grain offering. उसके बाद उपज के And the भेंट, peace offering. फिर उसके बाद मेल बलि। Come on, 5 offerings. चलिए 5 वहां पर भेंट। The first time the word grace is introduced in the Bible, it's in the context of Noah. हम देखते हैं पहली बार जो अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल बाइबल में किया गया है तो वह नूह के साथ मेल खाता है। And that's the 5th time that Noah's name is taken and it is mentioned in context with grace. Come on, somebody. और देखिए 5. 5वीं बार नूह का नाम वहां पर दर्ज किया गया है और यह अनुग्रह की अनुग्रह भी वहां पे दर्ज होता है उसके Fast साथ। forward, New Testament. आगे बढ़ते हुए नए नियम में You know, Jesus introduces a ministry called the fivefold ministry. यीशु
हमारे सामने एक सेवकाई पेश करते हैं, पंचरूपी सेवकाई। That's the fullness of grace coming to the body of Christ. और ये अनुग्रह की परिपूर्णता है जो मसीह के देह में आ रही है। Apostle, प्रेरित, come on. चलिए, Prophet, भविष्यवक्ता, come on. Evangelist. सुसमाचार प्रचारक, Evangelist stands very tall. Come on now. सुसमाचार प्रचारक जो हमेशा एकदम लंबे खड़े रहते हैं। Okay, then the pastor. फिर उसके बाद पासवान, Come on. And then the teacher. He gets in the ears and wrong other फिर उसके places. बाद शिक्षक जो कानों में। So the apostle, he endorses what the church, what it is. Thumb लगाता है. The तो number. देखिए, प्रेरित जो होते हैं वो समर्थन करता है कलीसिया जो कह रही है उनको। Prophet, भविष्यवक्ता, he points out. वो सीधा उंगली दिखाते हैं। And then the evangelist. फिर उसके बाद सुसमाचार You प्रचारक, see him everywhere. आप हर जगह पाएंगे नहीं, He's taller than the rest. बाकी सबसे ऊंचा होता You है। see him on television. आप इन्हें टेलीविजन पर You see पाएंगे, him on the road. सड़क पे पाएंगे, You see him everywhere. हर जगह पाएंगे। Then the pastor. फिर उसके बाद पासवान, That's where the ring finger. He's married to the church. यही ये इसी में देखिए अंगूठी पहनाई जाती है, They उसका विवाह कलीसिया से they call हुआ him. है। They call him everywhere. हर जगह देखिए उन्हें बुलाया जाता है, But he doesn't go. He says, "I have church actually. लेकिन वो जाते नहीं, वो कहते हैं अरे मेरी कलीसिया है, Church, church, church." कलीसिया कलीसिया कलीसिया। They're always taking care of the people. What happened? This हमेशा happened. लोगों की परवाह करते रहते They हैं are बस। married to the church. कलीसिया से उन्होंने उनका विवाह हुआ है। And then you have the teacher. फिर उसके बाद आप पाते हैं शिक्षक को। Don't go anywhere else, okay? कहीं मत जाइए, ठीक है? How many understand what I'm saying? कितने समझ रहे हैं इस Some बात? people are smart, they understand what I'm saying. So God brought the fullness of His grace through a fivefold ministry. Again, you see the number 5. Touch somebody and say, the तो number आप 5 देखते हैं speaks about परमेश्वर ने grace. अनुग्रह की परिपूर्णता को इस पंचरूपी सेवकाई के जरिए सामने लाया है, और फिर से 5 ये संख्या देखते हैं। Jesus had many wounds on His body, but the major wounds on His body were 5. हम देखते हैं यीशु के शरीर में बहुत सारे घाव हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो घाव की जो संख्या थी वो थी 5। You know, many people say, I want double, I want double. Praise God for that. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मुझे दुगना चाहिए, मुझे दुगना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो इसके लिए। You know, many people write to me and say, I want double portion. और बहुत सारे लिखते हुए कहते हैं, पासवान जी मुझे अभिषेक का दुगना भाग चाहिए। And they quote, Elisha asking Elijah. और देखिए वो बोलते दोहराते हैं, एलीशा ने आके जैसे एलिया से मांगा, विनती किया। Come on now. Say, I want double of what, Elijah had, और एलिया के पास जो अभिषेक है मुझे उसका दुगना भाग चाहिए। Nothing wrong in that. इसमें कोई खराबी नहीं। If that's your level, so be it. अगर ये आपका स्तर है तो ऐसा ही होए। But let me show you a higher level. लेकिन मुझे और भी ऊंचा स्तर दिखा दीजिए। Your level is not double. आपका स्तर जो है दुगना नहीं, Your level is 5 times. लेकिन आपका स्तर जो है 5 गुना है। Somebody receive it now in Jesus' name. चलिए कोई तो ग्रहण करे अभी यीशु के नाम में। Don't wait for double. दुगने के लिए मत रुके। I say, I receive 5 times. और कहे मैं 5 गुना ग्रहण करता हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम में। What it means is, इसका मतलब क्या it है? means the fullness of God's grace. इसका मतलब है परमेश्वर के अनुग्रह की परिपूर्णता। Somebody say, I am understanding, I'm receiving now in Jesus' कोई name. तो कहे इस वक्त मैं समझ रहा हूँ, मैं ग्रहण कर रहा हूँ यीशु के नाम So में। don't just say, I want double, तो ऐसा मत बोलिए मुझे दुगना चाहिए, दुगना चाहिए। No. नहीं, You're going 5 times now. अब आप 5 गुना स्तर में जाएं। In these last days, इन अंतिम दिनों में the Benjamin generation, that's you and me. बिन्यामीन की पीढ़ी जो आप और मैं हैं, Not just carrying a title of Benjamin, but those who have put your trust in the heavenly Joseph, that is Jesus Christ. सिर्फ जो बेंजामिन का नाम लिए वे ही नहीं, लेकिन वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास और भरोसा रखते हैं, Only in Jesus. सिर्फ यीशु में, Not with X, Y, Z, and Jesus. No. X, Y, Z और यीशु में, ऐसे नहीं। That's why he is not Jesus, the teacher, the philosopher, the good man. He is the Lord and Master Jesus. इसलिए वो यीशु सिर्फ एक शिक्षक या गुरु या कोई अच्छा व्यक्ति नहीं, वह राजाओं का राजा, वो स्वामी यीशु है। If that's you, अगर ये आप हैं, it's like I pray to Jesus on Sunday and Monday, I have somebody else, No. रविवार को मैं यीशु से प्रार्थना करती हूँ और फिर सोमवार को किसी और से नहीं। Hello? Jesus is Lord over all the days. यीशु ही हर एक दिन का प्रभु है। Somebody needs to shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। Then you are a candidate for 5 times in Jesus' name. Mark अगर my ऐसा words. आप हैं तो आप 5 गुना पाने के उम्मीदवार हैं। Says me, I receive in Jesus' name. बोले मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। In the Old Testament, देखिए पुराने नियम में the eldest son would receive double. और जो बड़ा बेटा होता था उसे दुगना भाग मिलता था। That was the inheritance from the father. ये तो उनके पिता की ओर से मिलने वाली उनके लिए विरासत थी। But because of Jesus, लेकिन यीशु की वजह come से, on, because of what? चलिए सब लोग बोलिए, Now your inheritance is 5 times.
अब आपकी विरासत जो है यह 5 गुना है। Come on, somebody receive this. चलिए कोई तो ग्रहण करे इसे। You're not understanding what I'm trying to आप नहीं say. समझ जो कहना Some of चाहते you are हैं। getting it. आप इस कुछ लोग तो पा रहे हैं। Any area, कोई भी क्षेत्र, whether it is spiritual, चाहे आत्मिक हो, whether it's a marriage, whether it's your health, 5 times receive it in Jesus' name. चाहे आपकी शादी हो या स्वास्थ्य, 5 गुना ग्रहण करें यीशु। Genesis 43:34. Then that is Joseph took servings to them from before him, but for Benjamin's serving was 5 times as much as theirs. You see, Benjamin was the youngest brother of Joseph, and he's serving Benjamin himself. सबको एक बार दिया, he's giving him 5 times. 5 चिकन का टुकड़ा ले। हम देखते हैं कि बिन्यामीन जो था यूसुफ का छोटा भाई था। हम देखते हैं यूसुफ आकर उसकी सेवा टहल करने लगा। बाकी को तो उसने एक बार दिया, लेकिन यहाँ पर आकर इसको 5 बार 5 गुना दे रहा है। You want bread pudding? You want bread pudding? तुम्हें रोटी चाहिए? डालूं? Okay, Judah, you take 1, okay? चलो जुड़ा तुम एक रखो And you और तुम 5, 1, 2, 3. 5 बार ले, 1 2 3 लेते जाओ। Benjamin was like, what's और happening? बिन्यामीन सोचता है ये क्या हो रहा है You बाबा? want pudding? Take 5. तुम्हें पुडिंग चाहिए? चलो ले लो 5 बार ले। And Benjamin must have gone full. Come on और now. बिन्यामीन तो एकदम, Are you getting me right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? This is how. And the other brothers were like, what's happening? और दूसरे भाई लोग सोच में पड़ गए ये क्या हो रहा है यहाँ? You see, that was grace. और आप देख सकते हैं ये था अनुग्रह है, That was favor. ये थी भलाई। Benjamin did not deserve it, और बिन्यामीन इसका हकदार नहीं था, but he got it. लेकिन फिर भी उसने पाया। It's not because you are something goody. Hello. ये इस वजह से नहीं कि कुछ आप अच्छा हेलो बोलते हैं इसलिए नहीं। You and me are imperfect people. और देखिए आप और मैं, हम एक असिद्ध लोग हैं। Just before coming to the service, you fought with the rickshaw fellow. और सभा में आने से पहले आप रिक्शा के ड्राइवर से लड़े। And you all bind करेगा तेरे को, मैं पहले बोल रहा। And रिक्शा बोलता मीटिंग में जाता ऐसा बोलता तू। And you feel condemned inside. और आप अंदर ऐसा महसूस कर रहे हैं। And when you come over here, और जब आप यहाँ आते हैं, you feel that the fellow sitting next to you आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो है is holier than thou, आपसे कहीं ज्यादा वो पवित्र है, But you don't know लेकिन आप नहीं जानते that before you, he's fought with another fellow and come. आपसे पहले वो किसी और व्यक्ति से लड़के Some आया। of you had a fight at home and you came. आप में से कुछ लोग घर में लड़ाई झगड़ा करके आए। He says, जा meeting में. And many people, they don't understand that. और बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है That the church is not perfect. कि कलीसिया सिद्ध नहीं है। That's why we need grace. इसी वजह से हमें अनुग्रह की जरूरत Come है। on, somebody. You see the people outside, you know how they talk? आप देखते हैं बाहर के लोग, दुनिया के लोग किस तरह से बात I'm करते हैं। telling, when you see such people, जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे, avoid them like the plague, because you see, they're only condemnation. You see, oh, you go to Corona, so you're doing like that. Why? Where do you go? तुम करोड़ों साल में जाते हो, ऐसा करते हो, तुम कहाँ जाते हो फिर? तूने बीवी से झगड़ा किया है, no problem. After the meeting, उसको lunch के लिए लेके जाओ. Don't quit on your marriage. Don't quit on your family. अपने परिवार Don't पर, quit on your ministry. अपने परिवार पर, अपनी शादी पर, अपनी सेवकाई पर हार मत मानिए, Because God is not quit on you. क्योंकि परमेश्वर ने आप पर हार नहीं माना है। To Benjamin, बिन्यामीन के he लिए gave him 5 servings. हम देखते हैं 5 गुना उसने दिया। So they drank and were merry with them. इस प्रकार उन्होंने उसके साथ मनमाना खाया पिया। I want to show you something. आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। See, notice over it says that the brothers, they drank and they were merry with him. और देखिए यहाँ पे वचन में लिखा है कि उसके भाई उन्होंने उसके साथ में मनमाना खाया और पिया। You know, when God gives you 5, देखिए जब परमेश्वर आपको 5 देता है, you know, it's grace. देखिए ये अनुग्रह है, It's favor. ये भलाई है। Notice over here that Joseph gave Benjamin 5 times, but the others were not jealous now. अब गौर करें यहाँ पर कि यूसुफ ने अपने भाई बिन्यामीन को 5 गुना दिया, लेकिन बाकी जो दूसरे थे वे जलने नहीं लगे इससे। Because earlier, Jacob gave Joseph a coat and they were jealous and they put him in the pit. और क्योंकि पहले ऐसा हुआ था कि याकूब ने जब यूसुफ को रंग बिरंगा कपड़ा पहनाया तो बाकी भाई लोग जो ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे और यूसुफ को पकड़ कर उन्हें गड्ढे में डाल दिया। This blessing that God gives you, there will be no sorrow attached with it. ये आशीष जो परमेश्वर आपको देता है, इस पे कोई दुख मिला हुआ नहीं रहेगा। The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow in Jesus' name. प्रभु की आशीष अमीर बनाती है और वो उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता, यीशु के नाम में। Remember what I said right now. याद रखना जो हमने कहा भी। This is what is your portion. Receive it in Jesus' नहीं name. तो आपका हिस्सा है, ग्रहण करिए यीशु के You नाम में। will receive it. आप ग्रहण करेंगे। You will have children minus the sorrow. Receive it. Hallelujah. I am telling you in Jesus' name. कहते हैं आपसे यीशु के नाम You में। will have a marriage minus the headaches in Jesus' name. आपके पास ऐसी शादी होगी जिसमें आपको सिरदर्दी नहीं होगा। You have to receive this word. आपको ये वचन ग्रहण करना You है। know, some Johnny will come to you and say, शादी करेगा ना तो मालूम है ना क्या होता है? उसको बोल, जॉनी भाई हट जा बाजू में, तेरे शादी में हुआ, मेरे शादी में ऐसा नहीं होगा।
I receive this grace in Jesus' name. ग्रहण करें इस अनुग्रह को यीशु के नाम में। और रहने दे मालूम है क्या सुबह क्या हो गया था? उसको बोल हम लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं, बंदर बिल्ली जैसे, लेकिन साथ में हंसते भी हैं। Come on. That's how it should be. इसी तरीके से होना चाहिए। So you see, these brothers had somehow changed. God had worked in their hearts. तो आप देख सकते हैं उसके भाइयों में एक बदलावट आ गया था, परमेश्वर ने उनके दिलों में काम किया था। So today, don't just pray for the double portion. Say, Lord, I open myself. I want all that you have for me. तो आज सिर्फ दुगना भाग के लिए प्रार्थना न करें, कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपके लिए पूरी से खुला हुआ हूं, जो कुछ भी आपके पास मेरे लिए सब उंडेल दीजिए। Stop praying like this. और ऐसी प्रार्थना करना बंद करें। प्रभु मुझे छोटा सा कर दो। Don't get angry on me. गुस्सा मत होइए, गुस्सा You मत होइए। think that is humility before God. It's not humility, it's unbelief. आप सोचते हैं परमेश्वर के सामने नम्रता, ये नम्रता नहीं, ये अविश्वास है। How dare you limit God? आपकी इतनी हिम्मत, कैसे आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Lord, प्रभु I thank you, you're my father. धन्यवाद, आप मेरे पिता हैं। I'm not perfect, but thank God for Jesus. I stand before you. मैं सिद्ध नहीं हूं, लेकिन धन्यवाद यीशु के लिए, इस वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। Lord, can I ask you something today? प्रभु क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? Give me all you have for me. मेरे लिए जो कुछ भी आपके पास सब कुछ मुझे दे दो। You will make a difference in this society. आप समाज में एक फर्क लाएंगे। You will rise up in Jesus' name. आप ऊंचा उठ खड़े होंगे यीशु के नाम That's में। what you need today. यही तो आपको जरूरत है Your आज। father was a poor man. Your mother was dead and gone. Who will help you except the Lord? Lift your hand. आपके पिताजी Receive गरीब it. थे, Hallelujah. आपकी माँ भी गरीब थी, उम्र के चली गई, लेकिन कौन आपको अपने का प्रभु करेगा? हम लोग हमेशा ना दुनिया में ढूंढते हैं गॉडफादर गॉडफादर गॉडफादर। अरे गॉडफादर को छोड़, फादर गॉड साइड में है। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी के हाथ क्यों चाहिए तेरे को? मेरा बाप बेचारा गरीब है, मेरा बाप बेचारा ऑर्डिनरी आदमी है, बट थैंक गॉड फॉर माय फादर। आई डोंट नीड अ गॉड फादर, यू हैव फादर गॉड। आपको गॉड फादर की जरूरत नहीं, आपके पास पिता Stop परमेश्वर है। saying like that. मेरे पीछे कोई हाथ नहीं है, there's no but support. नहीं तो मैं क्या करता था? मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं, कोई सहारा Don't worry नहीं है। about the support. Today, God will be your support. Go ahead, do that business. Go ahead, rise up and do great things for Jesus. आगे Move बढ़े, ahead. परमेश्वर आपका सहारा है, Move ahead. बड़ा काम करे, यीशु के लिए ऊंचा खड़े हो जाए, वो व्यवसाय में आगे जाए। Somebody say, मेरी पहचान नहीं है, मेरे तो क्या हुआ पहचान है? सबसे बड़ी पहचान यीशु मसीह से बना। I want to encourage you, don't let these worldly things stop you. इन दुनिया की चीजों को आपको रोकने मत दीजिए। I don't stand here because I know somebody. I stand here because I received 5 times more. Hallelujah. पालपा जी इसलिए यहाँ पे नहीं खड़े क्योंकि किसी को जानते नहीं, Receive इसलिए it. खड़े क्योंकि इन्होंने 5 गुना पाया है। How many of you are understanding this truth right now? कितने लोग सच्चाई को समझ रहे हैं?